Yes, I think it's recording now. Perfect. Thank you. And Abdul Rahim, you can start like within 5 minutes, I believe. Okay. No one is speaking right now. We'll start at 8:05, inshallah. जी अस्सलाम वालेकुम Manahil Sir, Ayn here. Should we start? yes, sir. मैं बस एक intro दे दूं, then we can जी start. please. Assalamu alaikum. My name is Abdul Rahim, President and founder of CSRS. Today we're going to hold the second webinar. Uh, our topic is publication process, and this is hosted by Medical Students Association of Pakistan and CSRS. And over to you, sir. Okay, ji, thank you so much. Thank you so much for the kind introduction. And my name is Dr. Muhammad Sharjeel Ilyas. I'm head of department and associate professor in the Department of Oral Biology at Akhtar Said Medical and Dental College. पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेरा बहुत पुराना है रिश्ता एंड आई बीन वर्किंग देयर लाइक सिंस लास्ट 13 years और वहाँ से काफ़ी पब्लिकेशंस और मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो हैं
मेरी सुपरवीजन में जो है निकले हैं। तो आज आपके लिए, सबके लिए, कि जो आसान, द सिंपलेस्ट वे टू पब्लिश, और ऐसे डूज एंड डोंट्स जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। So is it visible to everyone? My screen? Yes, sir. Okay, thank you so much. So, how to publish? Before going to this complex and fascinating world of publishing, I want to ask something from you guys. The first thing, why it is important? Publication. मैं आप में से पूछना चाहूंगा, कोई 3-4 लोग who can answer my this question, कि why it is important to publish? Anyone? मैं देख रहा हूँ अब्दुल रहीम मलिक को देख रहा हूँ, प्रेसिडेंट जो हैं वो तो ना बताएं। अभी दाइम शाहिद हैं, फिर रुबाब आसिम हैं। रुबाब आसिम, आप बता सकती हैं मुझे? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? So we have Talha. Talha, can you answer this? We have Maniha, we have Tartheel, we have Mahnoor. Anyone can answer this. Okay, why it is important to publish? I just need to know that I'm not talking with the president only. There are other listeners also. Manal Hasib, Mahnoor Khan. Anyone? Ramsha, Hasib, Awais, Asad, Bushra. So Sir, I there believe are responses in the chat box. You can see that as well. Okay, I need to. G, voice is not clear. Okay, it's clear now. Advanced knowledge about the research topic, very good. Foreign exams preferences, very good. For taking part in the vast world of medical literature, very good. Excellent, excellent. So, जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा CD आपका is very गोल है, stupid answer. that is career World building. को क्या benefit दे? Sorry, what have you said, please? Pardon me? So again, our goal is maybe our career building, or for master students or for part 1, part 2 students, it's dissertation, synopsis. तो एग्जामिनेशन गोल भी हो सकता है, एज वेल एज हमारा करियर बिल्डिंग। करियर बिल्डिंग कैसे है कि हमारी प्रमोशंस जो हैं इन पाकिस्तान, especially in medical and dental colleges, they are due and they are totally आप समझें कि जो है मजबूर हैं हम रिसर्च करने के लिए, if we want to be promoted as senior registrar or assistant professor or associate professor and even professor, तो हमारे पास ये रिसर्च आर्टिकल्स होने जरूरी है। देन एक आपको बहुत मजे की बात बताऊं कि one of my student from अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज recently he came to me and said कि हमने वो छोटा सा प्रोजेक्ट किया था and I sent this article to some of the university in अमेरिका, और वो उसका पोस्टर कंपटीशन के लिए एक्सेप्ट हो गया है। तो नाउ ही इज गेटिंग इंटरनेशनल रिकग्निशन एज वेल, और वहां से फिर चांसेस निकलते हैं आपके आगे निकलने के लिए। और बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो इसी तरह ही आगे निकले हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, जिस तरह आपने बाकी चीजें भी बताई, कि हमारा करियर और एग्जामिनेशन गोल जो है हमारे लिए फर्स्ट है। देन ऑब्जेक्टिव्स में सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ द पब्लिकेशन प्रोसेस, असल में है क्या चीज ये और किस तरह आगे हम पब्लिश करवा सकते हैं। देन द लास्ट थिंग इज
actually what editors or reviewers of the journals assess in the peer review process. Peer review process क्या है कि हमारे ही स्पेशलिटी के, जिस स्पेशलिटी के हम हैं, या हमने जो आर्टिकल जिस टॉपिक पे लिया है, उस आर्टिकल या उस टॉपिक से रिलेटेड स्पेशलिस्ट लोगों के पास हमारे आर्टिकल्स भेजे जाते हैं, और वो उसमें जो है अप्रूवल या रिजेक्शन देते हैं या रिवीजन्स देते हैं. तो दैट इज कॉल्ड peer review process. So first of all, why it is important? Now, what is my paper about? To find an answer to this question, you first have to consider the following questions as well. What I want to write about, worth it, क्या काम है उसका, कितनी worth है उसकी, then what will be the contribution of the paper to the field, as well as its contribution in the society, and what will I bring to the table that hasn't been said before. ये वो व्हाट टेस्ट है जो हम खुद से, अपने कोलीग से, अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं बिफोर चूजिंग एनी रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन दैट व्हाट टेस्ट. हम अपनी रिसर्च शुरू करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ऐसा काम हो जो ओरिजिनल भी हो, तो फिर इस व्हाट टेस्ट से गुजरना जरूरी है. Actually, this is one of my favorite slide. It's a sphere of knowledge, and you can find out a red line in this knowledge. This red line represents understanding. So we are standing on that red line. If we go inside from basic knowledge towards the basic knowledge, then we are thinking about something which have already been done. तो उसका फायदा कोई नहीं. And if we think beyond it, too deep, towards the outer limits, तो हम confuse हो जाएंगे, हम खो जाएंगे, we will be lost in that case. So we have to stick on that red line. This red line represents the gap, the questions which arises in our mind, जो कि known और unknown के दरमियान है. So this sphere knowledge, although कि ये red line जो है, that is not static, that is dynamic. Many of the theories, they are proven today, but they will be get debunked in future. So this is a static red line, dynamic red line. और हमें यहाँ पर हमेशा खड़े होकर देखना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं. इसको सम अप करता हूं मैं, क्योंकि हमारा इतना टाइम नहीं मैं इस पे लगाना चाह रहा. So this is also one of my favorite diagram, and it's an analogy which Sir Isaac Newton has said about that if I ascend further, it is by standing on the shoulders of giants. Actually, this is the ladder of knowledge. जो हम ladder of knowledge के ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो जब हम उसकी टॉप स्टेयर पे होते हैं, तो हम फर्दर देख सकते हैं और फार्दर देख सकते हैं देन द जायंट्स. सो एक्चुअली ये समझाने का मकसद क्या है? वो ये मकसद ये है कि और व्हाट इज ओरिजिनलिटी. हमारे पास अक्सर फॉरेन जो हैं जर्नल्स, जब हम कोई आर्टिकल भेजते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द नोवेलिटी इन इट, योर टॉपिक, व्हाट इज ओरिजिनलिटी इन योर टॉपिक. तो वो नोवेलिटी और ओरिजिनलिटी क्या है? दैट इज लीडिंग न्यू एम्पिरिकल वर्क. ये तो बेस्ट थिंग है ना. इट्स नथिंग लाइक इट. लाइक यू मे लाइक फॉर्मुलेट अ न्यू ड्रग जो बहुत जबरदस्त हीलिंग कैपेसिटी और रीजनरेशन कैपेसिटी रखती है, या यू विल फाइंड आउट अ न्यू टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक, जो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है और उसके हैजर्ड्स बहुत कम है दूसरों से. तो दिस इज द न्यू एम्पिरिकल वर्क. बट इंटरप्रेटिंग नोन आइडियाज इन अ न्यू वे. वी हैव नो आइडियाज which have already been proven, but उनको एक नए तरीके में देना, giving new data to old problems. अब कैसे? जैसे हमारे पास हाइपरटेंसिव की मेडिसिन मौजूद है, लेकिन हाइपरटेंशन की मेडिसिन मौजूद है, लेकिन उसका क्योर मौजूद नहीं है. So we'll find a cure here. उसके ऊपर इतना काम हो चुका हुआ है कि उसको पढ़ के हम एक नई डायरेक्शन देख सकते हैं. That is also originality. फिर एक वक्त ऐसा आया था कि द बुक लाइक जो ऑर्थोडॉक्स बुक्स हैं, मेडिकल बुक्स हैं इन यूके एंड यूरोप एंड अमेरिका,
they subtracted the tuberculosis. Tuberculosis वहां पर था ही नहीं. Then the AIDS came and वो it brought back the tuberculosis, और अब वो दोबारा से उनकी बुक्स में आ गई हैं. तो थी ओल्ड प्रॉब्लम, लेकिन अब उसको न्यू डाटा मिल गया. इसलिए इस तरह पाकिस्तान में ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखते हैं, और उनका हमारे पास ना प्रिवेलेंस रेट मौजूद है ना इंसिडेंस रेट मौजूद है कि फिलहाल कितने लोग उसमें जो है उसमें मुब्तला हैं, और कितने लोग पिछले 10 साल में उसमें मुब्तला थे. तो हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है. वी कैन गेट अ न्यू डाटा अकॉर्डिंग टू आवर लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास जितनी भी टेक्निक्स या ड्रग्स फॉर्मुलेशंस हैं वो सारी की सारी बेस्ड ऑन द स्टडीज हैं विच हैव डन अब्रॉड. और हमारी लोकल पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट है, इवन के ह्यूमन जेनेटिक्स में जितने जीन्स के इफेक्ट्स आ रहे हैं वो तो स्पेसिफिकली डेमोग्राफिक हैं. तो डेमोग्राफिक एरिया पे जो है रिसर्च, वो हमारा बहुत बड़ा गैप है जिसपे हम आ सकते हैं. देन ट्रांसलेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम वन टेक्निक और कॉन्टेक्स्ट टू अनदर. इसमें सर्जिकल टेक्निक्स भी आ जाती हैं, इसमें मेडिकल एजुकेशन की टेक्निक्स भी आ जाती हैं, इसमें बहुत सी दूसरी चीजें आ सकती हैं. एंड द लास्ट थिंग दैट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च. ये आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है. इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम जो सर्जिकल सूचर्स यूज करते हैं, सिल्क सूचर्स हैं, प्रोटीन सूचर्स हैं, बहुत से सूचर्स हैं, सूचर्स टेक्निक भी है हमारे पास, सूचरिंग टेक्निक. इन सूचर्स के ऊपर एक कोटिंग आती थी, एंटीबैक्टीरियल कोटिंग. वो कोटिंग ने एक, आप समझ लें कि इनकलाब ले आई दुनिया में, कि हाँ जी अब हर कोई वो कोटेड सूचर जो है यूज कर रहा था, और वो एंटीबैक्टीरियल कोटिंग थी. देन इन 2018 एफडीए ने उसको बैन कर दिया कि इसके बहुत से हैजर्ड्स हैं, या बहुत से इसमें जो है कैंसरस इफेक्ट्स हैं, तो इसको फौरी तौर पे बैन किया गया. अब दोबारा से सिंपल सूचर्स हमारे पास आ गए. तो हमारा वन ऑफ द पाकिस्तानी डॉक्टर इन मलेशिया आईएमयू में था वो, तो ही थॉट कि हम अपनी कोटिंग करते हैं कोई, तो ही फॉर्मुलेटेड अ ड्रग एंड ही प्रोसेस्ड द सूचर्स एंड दैट ड्रग. और वहां पर फिर उसने उसके लैब ट्रायल्स किए. वो उसने कॉन्फोकल स्टडीज की, उसने माइक्रोबायोलॉजिस्ट से मिलकर बैक्टीरिया के कल्चर्स करवाए. उसने लैब ट्रायल्स, जितने भी मटेरियल साइंटिस्ट था, वो डेंटल मटेरियल से रिलेटेड था पर मटेरियल साइंटिस्ट था, तो उसने सारे के सारे लैब टेस्ट वहां पे किए. अब उसने जब लैब टेस्ट कर लिए, तो इन वीवो ट्रायल्स के बाद, यानी लैब टेस्ट के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो एनिमल ट्रायल्स होते हैं इन वीवो ट्रायल्स में. इन विट्रो के बाद इन वीवो. अब जब एनिमल टेस्ट की बारी आई, तो ही कॉन्टेक्टेड मी. आई वाज इन पीजी में, पोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट, और मैं वहां पे रिसर्च ही करवा रहा था लोगों को. तो ही कॉन्टेक्टेड मी और सेड कि आपने ये वाला काम करना है. आई टुक द एथिकल अप्रूवल फ्रॉम माय बोर्ड एंड आई स्टार्टेड सूचरिंग इंसियंस गिवन ऑन द बैक ऑफ द एनिमल्स. रैट्स को हमने यूज किया. सिंपल मैंने इंसियन दी. इंसियन देने के बाद जो है सिंपल 30 का सिल्क सूचर एक में लगाया, और उसके साथ ही दूसरी इंसियन में मैंने ये प्रोसेस्ड और कोटेड सूचर लगाया. देन गॉट दिस लॉजिकल स्लाइड्स, लॉजिकल रिजल्ट्स आ गए, उसको वापस भेजा मैंने. एंड उसके अंदर फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट से भी हेल्प ली कि मैंने बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाया. सुडोमोनास जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, स्ट्रेप्टोकोकस को इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर भी उसके इफेक्ट देखे. अब मेरा काम इतना ज्यादा नहीं था. मैंने तो एनिमल ट्रायल किया, और बहुत छोटा सा ट्रायल किया जो मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर खत्म हो गया. लेकिन हमारी जो पब्लिकेशन थी, जो कि एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की वजह से बनी थी, कि वहां से मटेरियल साइंटिस्ट आया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आया, और मैं यहाँ से ऑरल बायोलॉजिस्ट था, हिस्टोलॉजिस्ट को साथ लिया. तो हम सब ने मिलकर एक रिसर्च की जो पब्लिश हुई, और बहुत अच्छे वेल रिप्यूटेड जर्नल में, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई, और फर्स्ट टाइम ही हमारी जो है एक्सेप्टेंस आ गई थी. तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी विंडोज हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं. सो okay, to summarize it, has it already been done? Agar it has already been done, so there is no way we are going through that. Is it possible to go further in this direction in an original way? Yes, there is a way. ये है वो चीज जो हम देखना चाहते हैं जब भी हम अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं या कोई चीज डिजाइन करते हैं, और इसी की बेस के ऊपर जर्नल्स की एक्सेप्टेंस या एडिटर की एक्सेप्टेंस आती है. दैट इज द मेन थिंग. आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे. इफ अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझे सवाल कर सकते हैं.
So अच्छा जी, ठीक है. The next thing is, हाँ, ये है level of evidence. Maybe most of you must know that ये साइंटिफिक स्टडीज या साइंटिफिक अप्रोचेस के लिए एक पिरामिड बनाया गया है, जो बॉटम और पीक पे डिफरेंट लेवल्स हैं इसके. अब बॉटम पे आप देखें तो वी हैव एनिमल स्टडी एंड लेबोरेटरी स्टडीज व्हिच आई हैव टॉक्ड अबाउट. लेबोरेटरी स्टडीज आर इन विट्रो स्टडीज, एनिमल स्टडीज आर इन विवो स्टडीज. देन वी हैव केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज. इसको हम डिस्कस अभी नहीं करते. वी हैव केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट स्टडीज. सिंपली इसको बताने के लिए दे आर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज. ये ह्यूमंस पे होती है. इनपे हम किसी भी डिजीज का या ड्रग का या कोई भी इफेक्ट देखते हैं ऑन सर्टेन पॉपुलेशन इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. या वो पास्ट में होता है या वो प्रेजेंट में होता है. एंड देन द ब्लैक वन इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल. ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं या क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं एक्चुअली, जो ह्यूमंस पे हो रहे होते हैं. ठीक है. सो इन द ग्रे वन दैट इज एनिमल एंड लेबोरेटरी स्टडीज. In the brown one, the gray one, case control cohort, and the black one, randomized control trial. ये वो 4 level of evidences हैं that comes into the umbrella of original article. जब हम ये बात करते हैं कि what is original article, तो it can be RCT, experimental trial, clinical trial, or cohort study, or case control study, or animal trial, or laboratory studies. They are all come under the umbrella of original article, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है. इस वक्त जितने भी जर्नल्स हैं उनमें ज्यादातर ओरिजिनल आर्टिकल्स ही दिए जाते हैं. तो दे कम अंडर एनी ऑफ दिस हेडिंग these headings. Then on the top there are meta-analysis, systematic review. Systematic review and meta-analysis, they are not actually experiments. They are reviews. Say कि मैंने 10 articles PubMed से उठाए and 10 articles say they were about hypertension, and I found out the best treatment of hypertension in those articles. I reviewed them and then I concluded, okay, what is there? That is systematic review. And if I reviewed their data and analysis, I have done analysis, then statistical analysis, then it is called meta-analysis. So अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो these 3 things, the original article, the systematic review and meta-analysis, इन तीनों की बहुत ज्यादा मांग है all over the world. ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ? The reason is Pakistan Medical and Dental Council approves only 3 categories: the original articles, the meta-analysis, the systematic review. ये 3 कैटेगरीज में जो भी चीजें आती हैं, हमारे आर्टिकल्स आते हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल. अदरवाइज नो केस रिपोर्ट्स, नो केस सीरीज, no letters to the editors or any other thing other than these 3 things, they are not accepting it. So हमें वो केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज डेफिनेटली काम देंगी, हमारी रिकग्निशन में काम देंगी, इंटरनेशनल रिकग्निशन में काम देंगी, हमारे नॉलेज को बढ़ाएंगी, हमें डॉक्यूमेंट हम करेंगे तो हमारा नाम बनेगा, मुल्क का नाम बनेगा. बट फॉर रिकग्निशन इन द PMDC and recognition for the posts like APs and associates and professors, we need these 3 things. And especially मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ओरिजिनल आर्टिकल्स की तरफ आपने ज्यादा जो है वो जाना है, बिकॉज दे आर एक्चुअली, आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर एक ओरिजिनल आर्टिकल बना सकते हैं. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में कहा, तो PMDC हमें ये सहूलत देती है, फैसिलिटेट करती है कि वो इक्वल क्रेडिट देती है फर्स्ट 6 ऑथर्स को. वहां पे ऑथर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के प्रॉब्लम्स नहीं है. वो कहते हैं कि जी अगर फर्स्ट 6 ऑथर्स हैं, वी विल गिव फुल क्रेडिट टू दीस 6 ऑथर्स. तो PMDC का ये भी फैसिलिटेशन है. लेकिन आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए while you are choosing, while you want to start an article or want to choose a journal. Second important thing, we have national journals as well as international journals. So how can you rightly choose a journal? Again, PMDC ने हमारे लिए इसको facilitate कर दिया, and PMDC has said that if any journal which is indexed by PubMed or Scopus, you can publish your article in that journal. It will be acceptable.
इसका हमें फैसिलिटेशन क्या है कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, और डेफिनेटली PubMed इंडेक्स एंड स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स जो हैं दे आर आल्सो हाईली रिकमेंडेड इंटरनेशनली और on international forums. So whenever you want to choose a journal, you should seek that journal in the PubMed or Scopus. Coming back to the national journals की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये वेबसाइट है pmdc.pk की, और इसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वेबसाइट अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी. दैट इज द थिंग. ये हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी which comprises almost 91 journals. ये पाकिस्तानी वो जर्नल्स हैं जिनमें हम पब्लिश करवा सकते हैं और पीएमडीसी इनको रिकग्नाइज करती है, यानी स्टैंडर्डाइज उसने कर दी है. अच्छा, इसमें देखने वाली बात क्या है? यू कैन सी दैट द फर्स्ट वन इज पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस्लामाबाद, और रिमार्क्स में क्या है कि रिन्यूअल एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर 2025. अब आपको ये चीज भी जरूरी देखनी है कि जिसकी तो रिकग्निशन या रिन्यूअल 2025 2024 तक है, देन यू कैन सबमिट योर आर्टिकल देयर. लेकिन इससे पहले अगर ये 2023 में है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सटेंड हो जाएगा, रिन्यूअल इसकी हो जाएगी, बट एट दैट मोमेंट इसकी नहीं है, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं. देन अनदर थिंग जो हमारे डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा फेस की है वो मैं आपको दिखाऊं. This one. If you can see that it is de-recognized, the recognition of the journal. Somehow what happened to that journal, we don't know, but PMDC re-recognized it, I think after 2018, and it's still de-recognized. And many of our doctors, they suffer due to de-recognition of that journal because they have published their articles very, I should say कि बहुत कीमती articles थे, precious articles, and they could not get recognized, and many of them and this act impacted on their career. अब बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट नहीं बन सके और बहुत से एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सके, सिर्फ डी रिकग्निशन की वजह से. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि ये डी रिकग्नाइज जर्नल्स ना हो जब आप इसको देखें. तो हमारे पास ये दो चीजें हैं जो पीएमडीसी का PubMed एंड स्कोपस इंडेक्स होना चाहिए. सेकेंडली, नेशनल जर्नल्स, ऑब्वियसली ये PubMed और स्कोपस इंडेक्स नहीं होते, बट पीएमडीसी ने इनका एक अलग सा लिस्ट दे दी है जो वो चेंज करती रहती है. तो आप लेटेस्ट लिस्ट निकाल सकते हैं वेबसाइट से पीएमडीसी की रिकग्नाइज्ड जर्नल की, आप गूगल पे टाइप करें तो वो आ जाएगी, तो आप उसमें से फिर चुन सकते हैं. सो हाउ कैन यू उनमें से, अब ये 91 जर्नल हैं तो आप कैसे चुन सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको एक बता दूं कि जैसे ये एक जर्नल का नाम दिया है पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड यस्टरडे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट लेक्चर, तो आई गूगल्ड द highest impact factor journal in Pakistan, and he came out with, the Google came out with that Pakistan Journal of Medical Sciences, having an impact factor of 2.63 something, which is really good impact factor. तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं, या इसके अलावा 1+ या इवन के इम्पैक्ट फैक्टर जिनका है उनको हम टारगेट कर सकते हैं बाय चेकिंग ऑन द गूगल, और फिर उसमें हम अपनी सबमिशंस कर सकते हैं. अब नाउ दिस जर्नल, इट्स बेस्ड, इट्स कराची बेस्ड जर्नल, एंड इट्स चार्जिंग ओनली 8,000 और 10,000 रुपीज पर पब्लिकेशन, जो कि इतनी ज्यादा बिल्कुल नहीं है. यही हम जब इंटरनेशनल जर्नल्स की तरफ जाते हैं तो उनकी फीस तो $3,000-4,000 तक भी जाती है. सो इस तरह के और बहुत से अच्छे जर्नल्स हैं पाकिस्तान में जिनमें आप पब्लिश कर सकते हैं अगर इंटरनेशनल जर्नल की तरफ अभी नहीं है तो. जी, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो डिपेंड करता है सबसे पहले कि आपके जो चूजन क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन, उसकी नॉवेलिटी क्या है. सेकेंडली, जो उसका सबसे ज्यादा चंक है वो ऑथर गाइडलाइंस पे है. एवरी जर्नल हैज इट्स गाइडलाइंस एंड दे आस्क ऑथर्स टू follow those guidelines strictly. Actually, they are knocked down clauses. अगर इनमें से एक गाइडलाइन भी आपने फॉलो नहीं की तो जो टीम ऑफ एडिटर है, इट विल सेंड इट बैक टू यू बाय सेइंग कि आप या तो इसके रिवीजन करें, या मेजर है तो रिजेक्शन होगी उसकी.
सो यू हैव टू फॉलो द ऑथर गाइडलाइंस। अब ये ऑथर गाइडलाइंस हैं क्या? इसके लिए हमारा एक पाकिस्तानी जर्नल है जो बहुत अच्छा जर्नल है, और उसकी मैं आपको गाइडलाइंस दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि हमने करना क्या है। दिस इज अ जर्नल विच इज कॉल्ड प्रोसीडिंग्स, शेख सयाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर का ये जर्नल है। डॉक्टर सादी शहजाद आलम इसकी चीफ एडिटर है। शी इज अ वेरी नाइस लेडी, हेड ऑफ फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है। मैं तारीफ वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि इन वन ऑफ द वर्कशॉप आई अटेंडेड वन ऑफ द वर्कशॉप विद हर, और शी इज वेरी हम्बल। ये जर्नल प्रोसीडिंग्स जो है, इसमें मैंने फर्स्ट टाइम अपना आर्टिकल सबमिट किया था, और उन्होंने बहुत जल्दी और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा आर्टिकल जो है पब्लिश कर दिया था। और ये पीएमडीसी रिकग्नाइज जर्नल है, तो इसलिए मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें गाइडलाइंस में हमने देखना क्या है, ये जरा आपने गौर करना है। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का क्या मतलब है कि देयर इज नो सब्सक्रिप्शन while reading the article. You can open up the journal, you can open up any article and you read it without any paying any money. Secondly, it's a medical journal which publishes research articles in all disciplines of medical sciences. This is called scope of the journal. Every journal, either it's national or international, it has a scope. और जब भी आप किसी जर्नल को टारगेट करें, स्पेशली इंटरनेशनल जर्नल को, यू टारगेट फॉर यू ऑलवेज रीड द स्कोप ऑफ द जर्नल। और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि बायोलॉजिकल साइंस या मेडिकल साइंस या मेडिसिन या आपसे रिलेटेड फील्ड जो भी है उससे वो पब्लिश करता है। देन टाइप ऑफ आर्टिकल्स में वी हैव ओरिजिनल यार रिसर्च। यार यार बड़ा दे काम खराब की कड़ा नेट सॉरी दुकान पे बैठे थोड़ा सही हसीब, चलना। अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। सो ओरिजिनल आर्टिकल, मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू, दीज थ्री आई हैव टॉक्ड अबाउट। ये तीनों को वो लेते हैं। इसके अलावा केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स, लेटर्स, शॉर्ट कम्युनिकेशंस, बहुत सी दूसरी चीजें भी ये ले रहा है, तो ये हमारे स्कोप में आ रहा है। देन द मेन थिंग इज मैन्युस्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब मैन्युस्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन में बता रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल है उस 2500 वर्ड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये बाउंड्रीज हैं जो वो आपको बता रहा है। देन इट शुड बी इन एरियल और कैलिब्रा एंड फॉन्ट साइज शुड बी 12, ये वो बाउंड्री है। देन वो आपके पेपर के कंपोनेंट्स को बारी बारी एड्रेस कर रहा है। से टाइटल पेज, उसकी एब्स्ट्रैक्ट, उसके बारे में बता रहा है। अच्छा, एक्चुअली ये टाइटल पेज और एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें हैं, जब भी मैन्युस्क्रिप्ट मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ तो उसमें सबसे एंड पे ये दो चीजें करता हूँ, ऑल्दो कि सबसे पहले दोनों आती हैं। तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल कि ये दोनों सबसे एंड पे होंगी क्योंकि ये समरीज हैं। देन अगेन हमारे पास आ जाता है मेन स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल, जिसमें इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? There are three things which are important. First of all, you should be very simple in writing your manuscript. Simple English use करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक्स ना हो। ग्रामरली एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डाल के देख सकते हैं कि आपके कोई जो है मिस्टेक्स तो नहीं है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद भी इसको जो है करेक्ट कर लेता है। तो फर्स्ट थिंग इज अ वेरी सिंपल इंग्लिश इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस आपके जो है कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। ठीक है। अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट है या ओ लेवल्स ए लेवल्स एफएससी का स्टूडेंट है, तो वो भी 70-80% आपके आर्टिकल को पढ़ के समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल इंग्लिश यूज नहीं करनी, बिल्कुल मुश्किल सेंटेंसेस यूज नहीं करनी। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम मिस कर जाते हैं, हम अपने आर्टिकल में, इंट्रोडक्शन में, मेथोडोलॉजी में जो भी चीजें लिख रहे होते हैं, दे आर साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हैं हेड एंड नेक कैंसर के बारे में, तो हेड एंड नेक की एनाटमी आप थोड़ा सा देना चाहते हैं कैंसर से रिलेटेड, तो दैट एनाटमी इज ऑलरेडी रिटन इन योर ग्रेज और केएलएम, और डेवलपमेंट देना चाह रहे हैं तो इट्स इन लैंगमैन्स। तो ये जो चीजें भी हैं आप बुकिश लेंगे या आप बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिकल से उठाएंगे, वो ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप लेटेस्ट आर्टिकल से उठाएं। मगर वो आइडिया जो उस स्टेटमेंट में आप दे रहे हैं, दैट हैज अ साइंटिफिक स्टैंडिंग, एंड दैट साइंटिफिक स्टैंडिंग शुड कैरी अ रेफरेंस। तो हर आपकी वो स्टेटमेंट, हर वो क्लेम जो आप अपने
मैन्युस्क्रिप्ट में कर रहे हैं, दैट शुड कैरी अ रेफरेंस, अ साइंटिफिक रेफरेंस। तो ये आपने याद रखना है। ये दूसरी चीज है जो इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या है कि आप अपने इंट्रोडक्शन और आगे चलने वाली जो भी है स्टेप्स, उनको एक स्टोरी के तौर पे देंगे। सो यू स्टार्टेड अ स्टोरी, हाउ डिड यू फाइंड योर रिसर्च क्वेश्चन इन 1 or 2 लाइन्स, कि क्यों इंपॉर्टेंट था ये चीज मेरे लिए, और क्या चीज अभी मुझे इसमें मिल नहीं सकी थी, और क्या चीज अब मैं नहीं ढूंढना चाहता हूँ। That is the story which will you narrate in your introduction. But every statement should carry out reference. वो क्योंकि fact होगा ही। Then coming towards the methodology, methodology is a vast subject. इसके बहुत से steps हैं, आज मैं वो discuss नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत time लग जाएगा। मगर इसके लिए हर एक के लिए हम एक अलग-अलग सेशन भी करना चाहें तो कम है। But you need to know कि हाँ जी ये चीजें जो हैं ये यहाँ पर हैं। जैसे स्टडी डिजाइन आपका क्या होना चाहिए, सेटिंग प्लेस आपकी कौन सी होनी चाहिए, पॉपुलेशन आपकी कौन सी है, लोकल है या बाहर के कोई मुल्क हैं या बाहर के कोई शहर हैं, आप कौन से जेंडर को अंदर ले रहे हैं, कौन से एज वालों को ले रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया, सैंपल साइज आपका स्टेटिस्टिकल ली निकलेगा, टेक्निक क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं। अगर आप हाइपरटेंशन पे स्टडी कर रहे हैं तो आप मॉनिटर क्या ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की रेंजेस क्या होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है मेथोडोलॉजी बताती है। फिर इन सब पे आप डेटा जो है कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसीजर्स भी लगाते हैं, जो हमारे पास SPSS मौजूद है, जिसकी एक अलग वर्कशॉप होगी जो ताहा ने प्रॉमिस किया कि वो करेगा। देन देयर आर एथिकल इशू कंसिडर्ड एंड क्लियरेंस ऑब्टेन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिटिंग का, स्पेशली जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, और इवन दे हैव देयर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, दे हैव देयर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स, जहां से आपको अपने आर्टिकल की अप्रूवल लेनी होती है। कि अगर आप एनिमल ट्रायल्स कर रहे हैं तो भी अप्रूवल लेनी है, अगर आप क्लिनिकल स्टडीज कर रहे हैं तो भी, क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं तो भी अप्रूवल लेनी है कि ये एथिकली मैं ठीक कर रहा हूँ। वो एथिकल कमेटी इस बात को सर्टिफाई करती है कि हाँ जी एथिकली अप्रूवल है। हर आर्ट जर्नल, चाहे वो नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है, दे आस्क फॉर एथिकल अप्रूवल। हाँ, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है तो उसमें कुछ जर्नल्स आपको जो है थोड़ा सा लीवे प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज ये चलती ही चलती है। सो अगेन इसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ जाता है, रिजल्ट एनालिसिस आ जाता है, डिस्कशन आ जाती है, दीज आर हेडिंग्स। रिजल्ट्स की बेस पे हमारे टेबल्स और ग्राफ्स बनते हैं। और आखिरी चीज जो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज ICMJE। दिस इज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल्स एडिटर्स रिकमेंडेशंस। ये मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। अब हर जर्नल कहता है कि इफ यू आर एन ऑथर तो यू हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन यू। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो ऑथर्स गाइडलाइन, so you designed the study, collected the data, analyzed and interpreted the data, but you are not an author according to ICMJE criteria. Why? Because you have not added the manuscript, approval final version, accountable for all aspects of the research. अगर ये आपने काम कर लिए, you are an author. क्या फर्क है इसमें? ICMJE क्या कहती है कि आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए डिजाइन ऑफ द वर्क में, वर्क को जो है एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में। आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए ड्राफ्टिंग में और या रिव्यूइंग में, या फिर फाइनल अप्रूवल में, या अकाउंटेबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क। और जो एंड पे आपका प्राइम ऑथर है, वो जो भी काम है उसकी अकाउंटेबिलिटी उसने लेनी है आपने। जो ये काम चार करते हैं किसी न किसी दर्जे में, दे आर ऑथर्स। गिफ्ट ऑथरशिप अब वो बिल्कुल खत्म कर रहे हो। कह रहे हैं कि किस लिए आप गिफ्ट ऑथरशिप करते हैं, हाईली ऑब्जेक्टिव लेवल की गिफ्ट ऑथरशिप हो रही है। दिस इज ICMJ क्राइटेरिया। सो नाउ जब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कि हमने एक जर्नल को चूज कर लिया है और दूसरी चीजें अपने मैन्युस्क्रिप्ट को ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो ऑथर सबमिट कराता है मैन्युस्क्रिप्ट को जर्नल। अब जर्नल एडिटर एसेस करता है मैन्युस्क्रिप्ट को, वो या तो इसको रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। अगर रिजेक्ट करता है तो रिवीजन के लिए दोबारा भेज देता है, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं।
इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारा एक्सपीरियंस है कि अभी पिछले दिनों एक हमारा आर्टिकल गया था, बहुत अच्छा आर्टिकल था, बड़ी मेहनत से हमने किया, लेकिन वो 4 या 5 दफा उसकी रिवीजन्स आई, यानी उसने रिजेक्ट करके भेजा, रिवीजन्स थी, हमने दोबारा से रिवीजन्स करके उसको वापस भेजा, फाइनली वो एक्सेप्ट हो गया। देन जर्नल एडिटर अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो रिव्यूअर्स को भेजता है, रिव्यूअर्स फिर अपने तौर पे रिवीजन्स भेजते हैं। तो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। तो इधर वो रिजेक्ट करते हैं या अप्रूव कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं तो रिव्यूज भेजते हैं, हम वो ठीक करके दोबारा से उन्हें भेजते हैं अगर मेजर नहीं है। देन वो जर्नल एडिटर जो है एसेस करता है कमेंट्स को, और कमेंट्स करने के बाद जो है मैन्युस्क्रिप्ट या एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट कर देता है। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वो जो है जर्नल में हमारी पब्लिकेशन होती है। आखिरी स्लाइड ऑलमोस्ट ये है। देयर आर सेवन डेडली सिंस, आप सबको पता है कि वो 7 डेडली सिंस क्या हैं। इसी तरह पब्लिकेशन के भी 7 डेडली सिंस हैं। डेटा मैनिपुलेशन, अक्सर हमारे बच्चे क्या करते हैं कि दे मैनिपुलेट द डाटा टू strengthen their hypothesis. It is very clear in all over the scientific societies कि आपका hypothesis जो है वो चाहे अप्रूव है या नहीं है, दोनों सूरतों में hypothesis हो या null hypothesis हो, आपकी रिसर्च जो है वो वैलिड है। क्योंकि अगर वो आपकी ड्रग को अप्रूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है डिसअप्रूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपकी रिसर्च जो है वो वैलिड हो रही है। तो वी शुड बी मतलब स्ट्रिक्टली अपने आप को ऑनेस्ट रखना होगा ड्यूरिंग आवर रिसर्चेस, कि हम डाटा मैनिपुलेट ना करें अपने लिहाज से। डुप्लीकेट मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी पेस्ट नहीं करनी, उसका क्या इफेक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉल्स रेफरेंसेस नहीं हमने डालने, जहाँ के रेफरेंसेस फैक्ट्स और फिगर्स हमने लिए हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अक्सर बच्चे हमारे यहाँ फॉल्स रेफरेंसेस डाल देते हैं और बाद में रिजेक्शंस लेके बैठे होते हैं, वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट है। देन रिडंडेंट पब्लिकेशंस, आपने एक काम किया और उसको चंक्स में जो है डिवाइड कर दिया और 2 या 3 जर्नल्स को टारगेट कर दिया, वो भी मना किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नल्स में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वो ज्यादा से ज्यादा काम एक आर्टिकल में मांगते हैं। प्लाजरिज्म, कॉपी पेस्ट करना, और अब बच्चे इतने ज्यादा एआई के बाद वो हो चुके हैं कि दे जस्ट गिव द कमांड टू एआई के राइट डाउन द साइंटिफिक पेपर ऑन फ्ला टॉपिक, एंड वो एआई सारे का सारा टॉपिक लिख देता है और वो उसी को छापते हैं और आगे भेज देते हैं। अब प्लेजरिज्म इवन हमारे नेशनल जर्नल्स में प्रोसीडिंग्स भी स्पेशली लिखती है कि एआई जो है उसके लिखे हुए को हम प्लेजरिज्म में काउंट करेंगे, और मोर देन आई थिंक 15% ऑफ प्लेजरिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उस पर पेपर रिजेक्ट हो जाता है। सो यू हैव टू राइट डाउन योर सेल्फ, आपकी अपनी सिंपल रेगुलर राइटिंग होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ या उसने मुझे जो है हायर किया हुआ है, आई एम डूइंग रिसर्च ऑन हिज और हर बिहाफ, और मैं फिर बायस्ड रिजल्ट ले रहा हूँ कि जो उसने बनाया, उसने मेडिसिन बनाई है वो अच्छी ही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट while गिविंग द डिसीजन, क्योंकि आज मैंने एक ट्रायल किया, कल को मेरे साथ वाला करेगा, कल को कोई और करेगा, तो मैं वो ड्रग तो आजकल में जो है पता चल ही जाएगा कि उसकी एफिकेसी कितनी है, मेरी जो रिसर्च है उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। देन एथिकल कंसर्न्स, इफ एनिमल स्टडी तो उसके एथिकल कंसर्न क्या है, अगर क्लिनिकल ह्यूमन स्टडी है उसके एथिकल कंसर्न्स क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके लिए आईआरबी बोर्ड्स बने हुए हैं, उस पर हमें जाना है और देखना है। जी आखिरी चीज, इसने इट्स अ नाइटमेयर, इट्स रियली अ नाइटमेयर। देयर आर number of journals, hundreds and thousands of journals present on the web, and they are predatory journals. They claim that when you open them, they claim that they are indexed with PubMed, they are indexed with the Web of Sciences, they are indexed with blah blah blah, एक लंबी लिस्ट होती है, but they are fake journals. कोविड के वक्त में हमने आर्टिकल लिखे, 3 आर्टिकल्स लिखे, और मुझे एक इनविटेशन आई, मैं आर्टिकल जर्नल का नाम ही बताता, IJSAR, और उसने हमारे आर्टिकल को 1 महीने के अंदर अंदर पब्लिश कर दिया। मैं बहुत खुश कि पहली दफा एक्सेप्टेंस हुई, पब्लिश भी हो गया, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी 5+ था, जो आज तक मेरे किसी आर्टिकल का नहीं हुआ। जिन जर्नल्स में मैक्सिमम मैं गया था 4.6 पे गया था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड सडनली वन ऑफ माई कोलीग सेड कि ये तो प्रेडेटरी है। मैंने कहा भाई प्रेडेटरी क्या होता है? कहते कि ये इन्होंने झूठ मूठ के जर्नल रखे होते हैं और आप पब्लिश करते हैं और उससे फिर ये पैसे कमाते हैं, रिव्यूज के भी पैसे कमाते हैं और वैसे भी पैसे कमाते हैं। तो एचईसी ने फिर अपनी एक वेबसाइट, अपनी एक पेज बनाया था
जिसमें उन्होंने लिस्टिंग ऑफ प्रेडेटरी जर्नल्स दी थी। तो जब भी आप ऐसे जर्नल्स की तरफ जाएं तो आप वो लिस्ट भी जरूर देख लें कि उसमें तो नहीं है। हाँ, जो स्कोपस या पबमेड इंडेक्स होंगे, जो पबमेड पे जाके आप देखेंगे, वो प्रेडेटरी आमतौर पे नहीं होते। तो इस चीज को भी आपने देखना है। सो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस, लेकिन टाइम काफी हो गया है, तो आई टेक योर क्वेश्चंस नाउ प्लीज। जी प्लीज, कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए। So what was the journal that you mentioned of Sheikh Zayed? इट्स प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स, PROCEEDINGS, प्रोसीडिंग्स। मैं चैट में भी लिख देता हूँ। इसके अलावा बहुत से और जर्नल्स भी हैं। एस्कुलेपियो है, वो इसका है, सेम्स का है, सर्विसेज वालों का, और बहुत से जर्नल्स हैं। जी प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये चैट बॉक्स के अंदर कुछ पूछ रहे हैं। जी, ईमेल में आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सर आपने बताया था कि पबमेड के जो जर्नल्स होते हैं उसके अंदर फर्स्ट 6 ऑथर्स को सेम क्रेडिट मिलता है। जी, तो जो इंटरनेशनली मतलब सॉरी पीएमडीसी के जो होते हैं उसमें फर्स्ट 6 ऑथर्स को सेम क्रेडिट मिलता है। जो इंटरनेशनली हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर क्रेडिट का क्या होता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन? सेम जो है पीएमटीसी जो है वो फर्स्ट 6 को देगी। ये मैं पीएमटीसी का क्राइटेरिया बता रहा हूँ। इंटरनेशनली अगर आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। Most of the international organizations they accept your journal if you have even like 10th or 11th or 50th name। उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये चीज पाकिस्तान में है। कुछ जो है पाकिस्तान में इवन के ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है पाकिस्तान में, वो सिर्फ फर्स्ट जर्नल को लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे, क्योंकि पीएमडीसी मेन क्राइटेरिया हमारी प्रमोशंस के लिए, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर बात की है। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के हर आप समझ लें कि इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, उसके अपने क्राइटेरियाज भी हैं। सर जी, हमारे नेशनल जर्नल्स में से कौन सा ऐसा जर्नल है जो काफ़ी लाइक एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनली भी? अगर हम फॉर एग्जांपल फॉरेन एग्जाम्स देते हैं तो उसमें बहुत वेटेज मिलेगी उसको। आई कैन से दैट बिकॉज हम देखते ये हैं कि इस साल जिस तरह अभी मैं गूगल करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि किसका हाई इम्पैक्ट फैक्टर है। हाँ, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल अभी आई है, इससे पहले पीएमसी थी। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल थी, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से पहले 2 साल ये रही है। एंड दे स्ट्रिक्टली फॉलोड द क्राइटेरिया ऑफ एचईसी। एचईसी के अगर हायर एजुकेशन कमीशन के पास आप जाते हैं ना, तो उनकी एक वेबसाइट है जिसे कहते हैं AJRS। ये भी मैं आपको अभी लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। AJRS, इस साइट पे आप जाते हैं और जर्नल को डालते हैं ना, तो जर्नल का वो 4 कैटेगरीज में उस जर्नल को करता है। एचईसी एक्चुअली चाहता है कि जो हाईएस्ट कैटेगरी है एचईसी की है वो डब्ल्यू कैटेगरी, इसके बाद है वाई कैटेगरी, सॉरी एक्स कैटेगरी, और इसके बाद है वाई कैटेगरी। ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। तो जो डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल्स हैं ना, अगर वो हमारा कोई लोकल जर्नल डब्ल्यू कैटेगरी में फॉल करता है तो इंटरनेशनली हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। एक्स और वाई उससे फिर नीचे आते जाते हैं उस लिहाज से, ये कहीं पे एक्सेप्टेबल है कहीं पे नहीं है। पर डब्ल्यू के अगर आप करते हैं तो डब्ल्यू हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। तो AJRS से आप ले सकते हैं हेल्प, या फिर जिस तरह गूगल मैंने किया था, तो लास्ट टाइम मैंने वो कराची वाला जर्नल देखा जिसका 2.63 इम्पैक्ट फैक्टर था। तो इम्पैक्ट फैक्टर भी काउंट करता है कि हाँ, इसकी अच्छी स्टैंडिंग है इंटरनेशनली। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज?
जी ताहा मनाहिल। सर ये जो एक लिस्ट थी जर्नल्स की, आप शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ, वो जो एक डॉक्यूमेंट आपने ओपन की थी? बिल्कुल, मैं ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना मैं ताहा के साथ शेयर कर दूंगा अभी व्हाट्सएप पे ना, तो फिर ताहा आपके साथ सबके साथ शेयर कर देगा। Just sir, one last question in the chat box. Sir, how to gauge the importance of my article and how to decide that in which IF journal should I send my paper? मनाहिल मुझे दोबारा बताएं, हाउ टू। ये chat box में आया हुआ है, how to gauge the importance of my article and how to decide that in which IF journal should I send my paper? अच्छा, इसमें हाँ, ये हाउ टू गॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ माई आर्टिकल, बिल्कुल ठीक है। पहला जो इसका हिस्सा है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि वो आप नहीं गेज कर सकते। वो कौन गेज करेगा? वो आपके सुपरवाइजर्स जो आपके सीनियर्स हैं वो गेज करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ओरिजिनलिटी, उसमें वो 4 चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अगर वो चारों में से एक भी चीज़ उसमें है तो आपका डेफिनेटली अच्छा आर्टिकल है। और हमारे पास जर्नल फाइंडर्स हैं इंटरनेशनली जाने के लिए ना, एक साइट है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, दैट इज कॉल्ड जर्नल फाइंडर। अगर आप अपना एब्स्ट्रैक्ट उसमें लिखें तो वो आपको आपके लिहाज का जर्नल बता देता है। अदरवाइज मैं एल्सवियर की लिस्टिंग पे जाता हूँ या इंटरनेशनल लिस्टिंग पे जाता हूँ पबमेड की, या दूसरी लिस्टिंग पे जिस पे भी जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अगर मैं एनाटमी से रिलेटेड हूँ या मैं ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड हूँ या मैं जेनेटिक्स से रिलेटेड हूँ तो वो जर्नल्स कौन से हैं। अब बड़े बड़े जर्नल्स हैं, जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, नेचर। नेचर इस वक्त इसका इम्पैक्ट फैक्टर 40+ है। नेचर एक जर्नल नहीं है, नेचर के अंडर बहुत से जर्नल्स आते हैं। इसमें एक जर्नल है जैसे साइंटिफिक रिपोर्ट, मेरे 2 आर्टिकल्स उसमें आए थे। साइंटिफिक रिपोर्ट जो है ये वो टारगेट जर्नल हो सकते हैं, ये बीएमजे के जर्नल्स हैं या हंडावी का जर्नल्स हैं। अब जब आप इसको देखना शुरू करेंगे ना और सिंपल आप गूगल करेंगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जर्नल्स इस वक्त रैंकिंग पे अच्छे हैं या आपके लिहाज से अच्छे हैं। तो आप उनमें से कोई भी चूज करते हैं और चूज करके उसमें ऑन द ट्रायल बेसिस अपने रिसर्च जो है वो डाल देते हैं। देखो बेटा, ये पेशेंस का भी काम है और ये आपकी मेहनत का भी काम है। फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरनेशनल जर्नल में आर्टिकल अपना छपवाना था तो मुझे बहुत सी ये मुश्किलात आई थी, लेकिन उसका सोल्यूशन मैंने देखा था अपने बड़ों से पूछ पूछ के कि आप एक जर्नल को, जैसे मैं ऑरल बायोलॉजी से रिलेटेड था तो मैंने आर्काइव्स ऑफ ऑरल बायोलॉजी को पकड़ लिया। वो जर्नल बहुत अच्छा जर्नल है और मैंने उसको बार बार भेजा अपने आर्टिकल्स, उसने रिजेक्ट करके मुझे वापस भेजे, बट ये है कि आई ट्राइड। तो उसको करने से मुझे तरीका आ गया कि मैं किसी और जर्नल में जाऊंगा तो साइंटिफिक रिपोर्ट में गया तो उन्होंने मेरा एक्सेप्ट कर लिया। बीएमजी के जर्नल्स में जाएं, वहां पे एक्सेप्टेंस अच्छी आ जाती है। तो ये आपको बार बार पूछने और करने से पता चलेगा आपकी फील्ड कौन सी है, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उस लिहाज से आप देखेंगे। वैसे ये जर्नल फाइंडर की वेबसाइट है, ये भी मैं ताहा से कहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर कर दें। जी प्लीज। Great. Thanks a lot, sir. Now I would like to ask Taha Javeed, member of the Supervising Council of MSA Pakistan, to say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. I am highly grateful to Dr. Shajil for his time having a good brief session. मैं in-depth हूँ because of this session which has been overwhelming and I have good number of participants over here. मैं certainly जो documents और जो listings डॉक्टर शजील में से शेयर करेंगे मैं वो रिसर्च वेबिनार का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे उसमें शेयर कर दूंगा and I hope that we'll be having a good response from you guys as well. We'll be sharing the post evaluation form as a Google document soon. I request you all to please fill this up and so we will be having e-certificates issued for you guys as well. मैं दोबारा से डॉक्टर शजील का थैंकफुल हूँ. आई एम थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, and I hope that we'll be having another webinar based on SPSS topic because that's very important social statistics के लिए. तो मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से डॉक्टर शजील को और हमारे को होस्ट स्पीकर को कि वो हमें ज्वाइन करें. And I'll request you all again to please have a time with us and that would be fruitful as well. So thank you again. Thank you to all the participants, co-host, speaker, and I hope that we'll be meeting again soon, inshallah. Thank you. जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। Also, everyone, please fill the post evaluation form, which we will send in the group soon, if you want to get the certificates. Thank you.
All right, thank you so much. Thank you to the participants and to the speaker as well. Thank you so much, sir, for your availability. And yes, you guys may leave the meeting now.